नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार वन न्यूज़। सच्ची बात बिना लाग लपेट। 33 साल का इंतज़ार और अब वो पल आया जब बॉलीवुड के बादशाह को मिला सबसे बड़ा सम्मान। शाहरुख खान को मिला है पहला राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म जवान में उनके दमदार अभिनय के लिए। ना तामझाम ना दिखावा, बस एक सच्चा कलाकार जो आज भी खुद को जिम्मेदार मानता है। शाहरुख ने कहा, यह अवार्ड जीत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अब और सच्चाई दिखानी है और गहराई से जुड़ना है। और इसी मौके पर उन्होंने वो किस्सा भी दोहराया जब स्वदेश जैसी फिल्म पर अवार्ड न मिलने का अफसोस हुआ था। उन्होंने साफ कहा, मुझे लगता था स्वदेश के लिए मुझे मिलना चाहिए था, तब नहीं मिला, लेकिन अब मिला, ठीक वक्त पर मिला। उनका एक मैसेज वायरल हो गया, हाफ अ हग टू एवरीवन टुडे। और उसी पल फैंस ने कह दिया, किंग खान अब सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल है। 33 साल का संघर्ष, 80 से ज्यादा फिल्में और अब मिला देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान। शाहरुख ने फिर साबित कर दिया, स्टार पैदा नहीं होते, बने जाते हैं। स्टार वन न्यूज़ पे हम कहते हैं, ये सिर्फ खबर नहीं, इतिहास है। क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच, वो भी बेबाक अंदाज में। स्टार वन न्यूज़, हर दिन हर खबर आपके साथ। Namaskar and Adab. Needless to say, I'm overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for the year 2023. So thank you Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. I want to thank my team and management which works tirelessly with me. They bear with me my eccentricities and impatience and give me their full attention and make me look much better than I am, like even now in this video. This award without the perseverance and love would not be possible at all. Thank you so much for everything you do. My wife and kids, who over the last few years give me so much more love and care, as if I'm the kid in the house and want only the best for me. They know my obsession with cinema takes me away from them, but they all bear it with a smile and allow me the time. So thank you very much for that. A national award is not just about achievement. It's a reminder that what I do matters. It tells me to keep going, keep working hard, keep creating, and keep serving cinema. In a world full of noise, to be heard, truly heard, is a blessing. And I promise to use this recognition not as a finish line, but as fuel to continue striving, learning and giving back. ये अवार्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि एक्टिंग सिर्फ काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है। स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी। और सबके प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारत सरकार का इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And then lastly to my fans, thank you for all the cheers and all the tears, and really thank you for pausing your scrolling while watching my award. This award is for you, as each award is. And yeah, I would love to spread my arms for you and share my love, but I'm a bit indisposed. But don't worry, just keep the popcorn ready. I'll be back in theaters and soon on the screen. So till then, just with one hand. Ready. सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है, ये उंगली धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे।
मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो मुझसे। वोट देने से पहले